میرے خیال تسا تاں نہیں بول دے کہ تسا اپنے آپ کو معمولی سمجھ کے بیٹھے ہو. علماء بیٹھے نے شمائل ترمذی یازع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد. اللہ دے پیارے محبوب نے مسجد نبوی دے اندر منبر رکھوایا اور حضرت حسان کو فرمایا کہ اے حسان اس منبر سے بیٹھ جا اور میری تعریف کر. میں کہتا ہوں نا کہ ایتھے بیٹھ کے نعت سناونا حضرت حسان دی سنت ہے تے بیٹھ کے سننا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت. اس واسطے تساں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو زندہ کر سمجھ لگے سبحان اللہ کہہ چپ نہ بیٹھ. ہن میں مختصر خطاب پر صداقت دیاں گا. ساڈے بہت ہی پیارے ساتھی چشتی وچ تشریف لے آئے خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا ابو بکر صاحب جو کہ ساڈے پورے ضلع دے شبان ختم نبوت اس کے مبلغ نے امیر نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بہت نوازیا بہت کم لے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے عمر دے اندر علم دے اندر زندگی دے اندر صحت دے اندر بھرپور برکت عطا فرمان. تو مختصر خطاب واسطے میں خطاب دیاں گا. تواڈے سامنے تشریف فرمانے چشتی وچ تشریف لے آئے حضرت مولانا ابو بکر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، ابھی جب ہم اس سفر پر آ رہے تھے تو نیت اور ارادہ یہی تھا کہ سیرت پر گفتگو کی جائے، لیکن میرے ہم سفر ساتھی جو تھے انہوں نے مشورہ دیا اور یہاں پہنچ کر ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی بدر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر بات کرنی ہے. میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ پورے دین اسلام کا مرکز ہے، یہ پورے دین اسلام کی بنیاد ہے. اکابرین اس عقیدے کی مثال ایسے دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ خانہ کعبہ کی طرح ہے اور باقی دین اسلام کے اندر جتنے بھی عقیدے ہیں وہ اس کے ارد گرد طواف کرنے والوں کی طرح ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ رہا، اس عقیدے کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی تو گویا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر نہ رہا، پھر باقی گھومنے والے کہاں جائیں گے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کا مرکز عقیدہ ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے، یہ دین اسلام کی شاہ رگ ہے. یہ کیسے دین اسلام کی شاہ رگ ہے؟ اگر مجھ سے کوئی بندہ سوال کرے اللہ کو مانتے ہو، میں کہتا ہوں بالکل مانتا ہوں. رسولوں کو مانتے ہو؟ بالکل میرا ایمان ہے، میں رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. فرشتوں کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. قبر کے عذاب و ثواب کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں.
किताबों को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। वो मुझसे पूछता है क्या अल्लाह को देखा है? मैं कहता हूँ देखा तो नहीं। फरिश्तों को देखा है? नहीं देखा। किताबों को देखा है उतरते हुए, नाजिल होते हुए? नहीं देखा। रसूलों को देखा है? मैं कहता हूँ नहीं देखा। कब्र के अज़ाब व सवाब को देखा है? मैं कहता हूँ नहीं देखा। क़यामत को देखा है? नहीं देखा। जन्नत को देखा है? नहीं देखा। जहन्नम को देखा है? नहीं देखा। तो वो पूछता है जब इनमें से कोई चीज भी नहीं देखी तो इतना ईमान क्यों रखते हो? इतने जोर से इन चीजों को मानते क्यों हो? तो मेरे पास जवाब एक ही होगा कि मैं ईमान लाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर। मैं ईमान लाया आमना के लाल पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बता दिया, जो कुछ आप लेकर आए, मैंने आंखें बंद करके उसको मान लिया। मैं देखूं या ना देखूं ये मेरा मसला है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो मैंने उसको मान लिया। ये अकीदा खत्म नबूवत है। दीन इस्लाम ये नाम ही नबी पर एतमाद का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर एतमाद है तो हम दीन पर हैं। ये दीन इस्लाम की शहरग है। अगर ये अकीदा महफूज ना रहा, पूरा दीन महफूज नहीं है। एक तंदुरुस्त आदमी के जिस्म के अंदर जो हैसियत अल्लाह ताला ने शहरग की रखी है, दीन इस्लाम के अंदर अकीदा खत्म नबूवत की उससे भी ज्यादा हैसियत है। मुझे एक बंदा नुकसान पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाने के लिए वो आगे बढ़े, मैं अपने हाथों से अपना दिफा करूंगा, इस हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। वो आता है मेरा ये हाथ काट देता है, मैं दूसरे हाथ से अपने आप को बचाता हूँ, वो मेरा ये हाथ भी काट देता है। अल्लाह ने मुझे पाँव दिए हैं, मैं दौड़ता हूँ, दौड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। वो आता है मेरे पाँव काट देता है। अल्लाह ने मुझे जुबान दी है, जुबान से चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, मुझे बचाओ, मेरी जान को खतरा है। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। वो आता है मेरी जुबान काटता है। अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, मैं आंखों के इशारे के जरिए दिमाग के अंदर सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने आप को बचा लूं, और फिर वो आकर मेरा दिमाग खत्म करता है। एक तो तरीका ये है मुझे नुकसान पहुंचाने का, दूसरा तरीका ये है कि वो मेरा दुश्मन आए और सीधा मेरी शाहरग पर हमला कर दे। अब मुझे बताएं, मेरे हाथ महफूज हैं? क्या ये हाथ मुझे बचा सकते हैं? मेरे पाँव महफूज हैं? क्या मेरे पाँव मुझे बचा सकते हैं? मेरी जुबान सलामत है? क्या ये मेरी जुबान मुझे बचा सकती है? जब ये सारी चीजें मुझे नहीं बचा सकती क्योंकि मेरी शहरग महफूज नहीं रही। यही मिसाल अकीदा खत्म नबूवत की है। अगर अकीदा खत्म नबूवत महफूज ना रहा, आप नमाज पढ़ रहे होंगे, ईमान नहीं होगा। आप कुरान पढ़ रहे होंगे, ईमान नहीं होगा। आप ज़कात अदा कर रहे होंगे, खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे, ईमान नहीं होगा। कलमा भी यही पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ मुसलमानों वाला कर रहे होंगे, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत के अंदर थोड़ी सी खराबी आई है, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा वो सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। एक बंदा आता है, इमाम साहब मुझे मसला बताएं। एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया है, झूठा दावा उसने कर दिया कि मैं नबी हूँ, और कहता है कि दूसरा बंदा उससे जाकर पूछता है कि तेरे पास क्या दलील है कि तू नबी है, तेरे पास क्या अलामत है कि तू नबी है, अपनी दलील बताओ, अपने नबियों वाली अलामत मुझे बताओ। इमाम साहब ने फरमाया कि जिसने दावा किया उसकी बात अभी छोड़ो, ये जो बंदा जाकर उससे दलील और अलामत पूछ रहा है ये ईमान से खारिज हो गया, इसका ईमान खत्म हो गया, ये ईमान लुटा बैठा। उसने पूछा कि इसने कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीन नाम है नबी पर एतमाद का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबूवत नहीं देगा, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जब नबी ने ये फरमा दिया तो हमें इस पर यकीन
यकीन कर लेना चाहिए। इस बंदे को शक था, इसलिए शक की बिना पर इसने उससे सवाल कर लिया कि तेरे पास दलील क्या है। अभी तक उसके दिल के अंदर पूरा शक आया नहीं कि वो ईमान से पहले खारिज हो गया। इसलिए इस अकीदे के अंदर थोड़ा सा भी शक आ जाए तो उसका हुक्म क्या है, वो बंदा दीन इस्लाम से निकल जाता है। यही बात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, मन तलब मिन्हु अलामतन फकद कफरा। मेरे भाइयों, ये अकीदा खत्म नबुव्वत, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसको बचाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है। जो बंदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा वो नबी के बॉडी गार्ड की हैसियत रखता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकीदार की हैसियत रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार की हैसियत रखता है, आपके खास खादिम की हैसियत रखता है, खास गुलाम की हैसियत रखता है। इसलिए दुनिया के अंदर जितनी भी फजीलतों के काम हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के पीछे है, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के बाद है। दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा जो मकाम है वो मकाम सिद्दीकियत है, मकाम सिद्दीकियत से बड़ा कोई मकाम नहीं है। और फरमाया कि मकाम सिद्दीक को हासिल करने के लिए, मकाम सिद्दीकियत को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा जरिया वो अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा करता है, उसको जो इनामात मिलते हैं वो पूरी उम्मत को नहीं मिलते, उसको जो इनामात मिलते हैं वो बाकी लोगों को नहीं मिलते। खत्म नबुव्वत की वजह से अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बाकी सारे नबियों से बुलंद कर दिया। इसी तरह जो उम्मती इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा करेगा, अल्लाह ताला उसको भी सारे उम्मतियों में से नुमाया कर देंगे, उसका मकाम भी अल्लाह ताला बाकी लोगों से ज्यादा बढ़ा देंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारियों में से है कि हम नबी की ज़ात का दिफा करें। छोटी सी मिसाल देता हूँ, नबी के ज़ात का दिफा किया तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया। सारे सहाबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं, मजलिस में हाजिर होकर क्या कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। याद रखें, अरब के अंदर जब माँ बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुराद सिर्फ माँ बाप नहीं होते, बल्कि इससे मुराद दुनिया भी और आखिरत होती है। गोया के सहाबा क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह मेरी दुनिया और आखिरत आप पर कुर्बान हो जाए, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान हो जाए। ये हर सहाबी के मुंह पर ये जुमला होता था जब भी वो आपकी मजलिस में आया करते थे। लेकिन कुर्बान जाए साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर ग़ज़वा उहुद है, कुफ़ार की एक जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रही है। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं, दौड़ते हैं, अपने तीर चलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साद बड़े अच्छे अंदाज से तीर चला रहा है, आपने तीर उठा कर दिए, साद ये लो तीर, साद ये लो तीर। लेकिन एक जुमला भी फरमाया, इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ऐ साद मेरी ज़ात का दिफा करो, मेरी ज़ात का दिफा करते हुए मेरे दुश्मनों पर तीर बरसाते रहो, मेरे दुश्मनों की तरफ तीर बरसाते रहो, मुझ मोहम्मद के दुनिया और आखिरत तुम पर कुर्बान हो जाए। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और किस वजह से, नबी की ज़ात का दिफा करने की वजह से। आप में से शायद हर एक ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम सुना हो, सुना है नाम? आप हजरात मजमे में से सुना है गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम? जानते हैं उसको? क्यों जानते हैं? वो इस शहबाज वाला चक में रहते थे इसलिए जानते हैं, वो फोटाबाज में रहते थे इसलिए जानते हैं, हमारे जिला बहावल नगर में रहते थे इसलिए जानते हैं, या कोई वो बड़े बहुत ज्यादा मालदार थे, बड़ी कोठियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े सियासी नाम था उनका इसलिए जानते हैं।
کیا وہ بڑے عالم تھے اس لیے جانتے ہیں؟ وہ بڑا کوئی مفتی، بڑا کوئی پیر شیخ تھا اس لیے جانتے ہیں؟ وہ ایک 21 سال کا نوجوان لڑکا تھا جو کان کے اندر بالی پہنا کرتا تھا، تانگا چلایا کرتا تھا، باپ اس کا ترکھان تھا، لیکن قیامت تک اس کا نام لوگ یاد رکھیں گے، قیامت تک اس کا نام پکارا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان نبی کی ذات کے لیے قربان کر دی۔ جو بھی نبی کی ذات کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ سارے لوگوں میں سے نمایاں اس کو بنا دیں گے، سارے لوگوں میں اس کا نام اونچا کر دیں گے۔ غازی علم الدین شہید کی کیا شان تھی، بہت لمبا واقعہ ہے، اگر واقعہ سنایا جائے تو شاید ساری رات ہی اسی پر گزر جائے۔ ایک دو چند اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استاد عشق لہر ایک آدمی تھا جو گیا جیل کے اندر کہ میں نے غازی علم الدین شہید سے ملاقات کرنی ہے۔ غازی علم الدین سے ملاقات کرنے کے لیے جیل پہنچا۔ ملاقات کے اندر بڑا شاعر تھا، گفتگو کی فی البدی اس کی زبان پر یہ اشعار آئے، فی البدی اس نے یہ اشعار پڑھے، بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا علم دین محمد دے نام اتوں میاں جان جوانی نو وارے آئی۔ علم دین محمد دے نام اتوں میاں جان جوانی نو وارے آئی۔ آفری غازی تیرے حوصلے تے راج پال کم وقت نو مارے آئی۔ جیڑا چکیا بوجھ محبتاں دا چڑھ کے دار تے سروں اتارے آئی۔ بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمناں دا علم دین تو کل اتارے آئی۔ وآخر دعوانا